الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، رونق اسٹیج باوقار علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامع نظام، گھروں سے آواز سماعت کرتی ہو خواتین پردہ ماور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ اور ہم مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے اے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک مقام پہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم سبوں کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم سبوں کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ابھی کچھ سال پہلے ایک شاعر کا انتقال ہوا جسے دنیا ڈاکٹر راحت اندوری کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری فرماتے ہیں، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اگر سات سمندر بھی نچوڑ لوں راحت تو آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا، اگر سات سمندر بھی نچوڑ لوں راحت تو آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے کہ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا
محبوب خدا کا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان ہے تمہاری آقا تم عرش بری پر پہنچے، یہ شان ہے آقا تمہاری تم عرش بری پر پہنچے، جی شان نبی سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، جی شان نبی سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، نکاح کرو ایسی عورت سے جو تمہیں پسند آ جائے۔ آپ اپنے بچے کے لیے یا آپ اپنی بچی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم لوگ، اور بارہا میں نے حدیث قدسی پڑھتا رہتا ہوں اور آج بھی میں نے حدیث قدسی پڑھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو لوگ اس سے اعراض کرے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح میرے آقا کی سنت ہے۔ اگر آج آپ اور ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں، کسی سے میں کہہ دوں کہ آپ جو نکاح کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے، اگر وقت کا انسان اگر قرآن پڑھنے کا تعلیم بھی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں اس سے پوچھ دوں ذرا بتاؤ جو تمہاری نکاح ہوئی ہے یہ کس کا طریقہ ہے، تو آج کا سنی صحیح عقیدہ مسلمان یہی جواب دے گا مولانا صاحب یہ کسی اور کا طریقہ نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ لیکن میرے آقا، یہ پوری دنیا جان رہی ہے کہ نکاح میرے آقا کی سنت ہے۔ آج آپ کے گھروں میں بھی شادیاں ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا میرے آقا کی سنتوں کے مطابق شادی ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں رشتے آ جائے، اگر بیٹے کی شادی لگ جائے یا بیٹی کی شادی لگ جائے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، ابھی 2 مہینے شادی میں باقی ہے، 2 مہینے پہلے سے ہمارے گھر میں غلط رسومات، جو چیز اسلام میں ہے نہیں، اس چیزوں کے اوپر ہم عمل کرنے لگتے ہیں۔ جس گھر میں شادی لگ جاتی ہے حال کیا ہے؟ آپ جس بستی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کچھ جائزہ لیے ہوں گے، محاسبہ کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ آج اگر کسی کے گھر میں کسی بچے یا بچی کی شادی لگ جائے تو غالباً 2 مہینے پہلے نہیں تو کم سے کم 1 مہینہ پہلے سے اس کے گھر میں گیت گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو مسلمان، یہ شادی میرے آقا کی سنت ہے، اور جب تک ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی آقا کی سنتوں کے مطابق نہیں کریں گے تب تک ہماری شادی میں کبھی کامیابی نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا والے تو جواب یہ دیتے ہیں، اگر کسی کو سمجھا دیا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں نئے نئے مولوی صاحب آئے ہیں، نئی نئی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم لوگ نئی نئی باتیں نہیں بتاتے ہیں، نہ اپنی بات کی لکھی ہوئی بات بتاتے ہیں، ہم وہ بات بتاتے ہیں جو رسول پاک کا فرمان ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو انبیاء کے وارث قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء کا کام ہے کہ حق بیان کر دے، علماء کا کام ہے کہ حق بیان کر دے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا کام ہے کہ حق بیان کر دے اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں،
जिस तरह उलमा की जिम्मेदारी है, एक आलिम की जिम्मेदारी है, एक हाफिज की जिम्मेदारी है कि हक बात बयान करे, इसी तरह आवाम का हक ये है कि उलमा की बात पे अमल करने की कोशिश करें। आप पूरी जिंदगी मिलाद सुने, पूरी जिंदगी मिलाद सुने, लेकिन मिलाद में कही गई बात पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो मिलाद सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग कहते फला जगह के मौलाना साहब को बुलाए थे, बड़ी अच्छी तकरीर हुई थी। अरे वो मौलवी साहब थे, अच्छे थे, तकरीर अच्छी कर दी है, अच्छी बात है। तकरीर अच्छी हो जाना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि किसी अच्छे तकरीर पे अमल करना ये कमाल की बात है। आप 500,000 रुपया देकर मौलाना को बुलाएं या 50,000 रुपया देकर मौलाना को बुलाएं, जो 50,000 रुपया लेकर भी आपके सरजमीन या आपके बस्ती में या आपके मिलाद में शिरकत करेगा, वो भी वही बात बताएगा जो बात 500 रुपये का मौलाना भी आकर आपको बता सकता है। क्योंकि कहीं का भी मौलाना है तो अपनी बाप की बात बताने नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के फरमान सुनाने के लिए आता है। बेहतर यह है कि आप मिलाद कम सुने लेकिन अमल करने की कोशिश ज्यादा करें। आज हमारे घरों में शादी में अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारे घरों में शादी होती है, गालिबन 1 से 2 महीने पहले या 2 महीने पहले नहीं तो कम से कम 1 महीना पहले शादियां की तैयारी होने लगती है। क्या भाई, तो खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो टेंट का इंतजाम कर रहे हैं, तरह तरह की चीज है, तरह तरह की चीज है। यहाँ तक कि आलम ये होता है कि अगर लड़के की शादी होना तो बारात निकल जाती है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। घर वाले कहते जाए सोहरा भूल गए, तो फला सामान भूल गए, फला सामान भूल गए। हालत ये होता है जिस शादी की तैयारियां 1-2 महीने पहले से चल रही है, लेकिन 2-3 महीने पहले से तैयारियां चल रही है, फिर भी मुकम्मल नहीं हो रही। और कान खोल के सुन लो, तुम ये सोचते हो कि शादी करने के लिए 2-3 महीने पहले की तैयारी करना होगा, 2-3 महीने पहले से ही लग जाना होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शादी फकत 5 से 10 मिनट, फकत 5 से 10 मिनट में निकाह हो जाया करता है। और शादी कब होती है? आप क्या सोचते हैं कि किसी के दरवाजे पे 400 या 500 बाराती लेकर जाइएगा तब निकाह होगी? नहीं नहीं, आप ये सोचते हैं कि अपने दरवाजे पे 50 लोग या 500 लोगों को बुलाकर खिला लेंगे तब हमारे बेटे की शादी हो जाएगी? नहीं नहीं, आप ये सोचते हैं कि किसी के दरवाजे पे नाचने वाली फाहिशा को ले जाएंगे और उसके दरवाजे पे नचाएंगे तब हमारे बेटे की शादी होगी? नहीं नहीं, आप शादी में 1 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए खर्च कर दे। पैसे खर्च करने से शादी नहीं होती है, जब तक काजी ना आए निकाह ना पढ़ाए तब तक शादी नहीं होती है। शादी के लिए लड़का का होना जरूरी है, लड़की का होना जरूरी है, 2 गवाहों का होना जरूरी है और निकाह पढ़ाने वाला काजी का होना जरूरी है। फकत 5 से 7 लोग, 2 गवाह, 1 दूल्हा 1 दुल्हन, 4 लोग, पढ़ाने वाला काजी 5 से 7 लोग अगर निकाह में शामिल हो गए, निकाह हो गई। क्या जरूरत थी 500 लोगों को खिलाने का? क्या जरूरत थी किसी के दरवाजे पे 500-400 बराती ले जाने का? याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत आयशा हुजूर की बीवी है, हजरत आयशा फरमाती है कि मैं हुजूर से एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछती थी, एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछती रही। क्या पूछती थी? हुजूर से यही पूछती थी, आयशा बीवी है और हुजूर से पूछती है, हुजूर बताइए इस्लाम में सबसे अच्छी शादी कौन सी शादी है? हुजूर बताइए इस्लाम में सबसे अच्छी शादी कौन सी शादी है? आयशा फरमाती है कि हुजूर ने मुझे बार बार यही कहा, आयशा इस्लाम में सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें जितना कम खर्च हो वो शादी उतना ही अफजल है। हुजूर के नजदीक जिस शादी में जितना कम खर्च हो वो शादी उतना ही अफजल है। और आज हुजूर के नाम पे कलमा पढ़ने वाले, हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ने वाले, हुजूर के नाम पे सलाम पढ़ने वाला ये कहता है कि अगर हम अपने बेटे की शादी में नाचने वाली को नहीं बुलाएंगे तो दुनिया वाले मुझे ताना देंगे। याद रखो, दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो ना, जब मर जाओगे ना, जब मरोगे ना तो ये दुनिया वाले तुझे नहीं बचाएंगे। आज तो हाल ये है कि अगर तुझे कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है तो बाप से अगर शिकायत करते हो तो बाप कहता है कि मेरे जीते जी
किसकी अंदर ये हिम्मत कि मेरे बेटे को तकलीफ दे दे। भाई से अगर कहते हो तो भाई भी यही कहता है, मेरे जीते जी मेरे भाई को कौन है जो मार सकता है। जीते जी अगर चाचा से शिकायत करता है एक भतीजा, तो चाचा ये कहता है, मेरे जीते जी मेरे भतीजे को कौन तकलीफ दे सकता है। याद रखो, दुनिया के तकलीफ से तुम्हारे बाप तुझे बचा ले रहा है, दुनिया के तकलीफ से तुझे खानदान वाले तुझे बचा ले रहे हैं, दुनिया के तकलीफ से तुझे कबीले वाले बचा रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब कब्र में जाओगे और अल्लाह का अजाब जब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, तो तुम्हारा बाप भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता है, तुम्हारे चचा भी तो अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता है, तुम्हारे खानदान वाले भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते हैं। अगर कब्र में अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अगर किसी और जात किसी की जात होगी, तो किसी और की जात नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी, किसी और की जात नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी। आज ये कहते हो, अगर कह दिया मौलाना कह दे कि आप बेटे की शादी करने क्या जरूरत थी ऑर्केस्ट्रा बांधने का, तो आप कहते हैं छोटा बेटा है, लाडला बेटा है, बड़े प्यार से पाले, अगर इसकी शादी में नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बड़का भाई का शादी बड़ा धूमधाम से किया था लेकिन छोटका का सादा सादा कर दिया। लेकिन याद रखो मुसलमान, अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जितने सादगी के साथ शादी करोगे उतना ही अफजल हुआ। जितनी सादगी के साथ शादी कर सकते हो करो, मेरे आका की सुन्नत। और अगर कोई शख्स ये कहता है, बाल दोस्त अहबाब भी, अगर किसी दोस्त की शादी होती है तो बाज़ाब्ता अगर घर वाले गरीब रहता है तो लड़का से पूछता है दोस्त कि बताओ तुम्हारी शादी में क्या क्या का इंतजाम है। तो लड़का अगर कह देता है कि ज़्यादा बाराती को नहीं ले जाना है, 10-12 बाराती को ले जाना है या 50 को बाराती को ले जाना है, तो दोस्त उसको चढ़ाता है और कहता है क्या बात है 50 को बाराती ले जाना, बड़ा कम बाराती ले जाना, और उसके अलावा भी कोई चीज़ का इंतजाम है। तो कहता नहीं, राताराती बाराती है, कोई चीज़ का तो इंतजाम नहीं है। तो कहेंगे काम करो, रात गुजारने के लिए कम से कम प्रोजेक्टर का इंतजाम कर दो, रात गुजारने के लिए कम से कम ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर दो। अब ये गरीब लड़का अपने दोस्त से जब कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा कर सके, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम प्रोजेक्टर कर सके, तो दोस्त चढ़ाता है। और दोस्त जानते हैं क्या कहता है, दोस्त ये कहता है कि ये काम करो, अगर ऑर्केस्ट्रा का खर्च अगर 20,000 रुपया हो रहा है तो एक काम करो, तुम 10,000 रुपया कहीं से इंतजाम करो, 10,000 रुपया हम इंतजाम कर देते हैं, 10,000 रुपया इंतजाम तुम करो, 10,000 रुपया हम इंतजाम कर देते हैं। अगर गरीब लड़का कह दे कि ना ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो 5 दोस्त ऐसे हैं जो ये भी कह देते हैं अगर तुम्हारे शादी में ऑर्केस्ट्रा नहीं रहेगा तो हम आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। 5 दोस्त इनकार कर देते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर कोई ऐसा दोस्त तुम्हें मिले ये कहे कि तुम्हारी शादी में ऑर्केस्ट्रा होगा तब हम आएंगे, तो ऐसे दोस्तों को जवाब देना तुम हमारे घर पे आओ या मत आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी होगी तो किसी दुनियादार के दिखावे के मुताबिक नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के फरमान के मुताबिक होगी, क्योंकि ये शादी किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। और अगर मैं ऑर्केस्ट्रा नहीं कर रहा हूं, अगर तुम नाराज होते हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें राजी तुम्हें नहीं करना है, हमें राजी मदीने वाले मुस्तफा को करना है। किसी शायर ने कहा था, वो दोनों आलम के रहमत थे जिस आलम में चाहते रह जाते, वो दोनों आलम के रहमत थे जिस आलम में चाहते रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है उन्हें आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है उन्हें आलम पसंद आया। इसलिए मुसलमानों, हुजूर ने उम्मती के लिए क्या नहीं किया। रातों को हुजूर ज़ारों कतार रोया करते थे और हुजूर इस उम्मती के लिए रात भर आंसू बहाया करते थे। और आज की उम्मत जो उम्मती है हुजूर के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। अगर नमाज कह दिया जाए पढ़ने के लिए तो नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है हमें। बहुत अफसोस की बात है। कहते हो मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। आका का फरमान पढ़ो तब पता चलेगा। आका की हदीस मुबारका है, आका फरमाते कुल्ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन वो होता है, मेरे आका ने मुसलमान और मोमिन की पहचान बताया। कुल्ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान वो होता है
جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. پھر فرمایا اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو, تب وہ کامل مسلمان ہوتا ہے. کان کھول کے سن لو مسلمانوں, میرے آقا نے فرمایا جب تک جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, اپنے آل و اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا کا محبوب کہہ رہا ہے, اور میرے آقا کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا, کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اب آقا فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو. ذرا غور کرو مسلمانوں, آپ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے نہیں. وقت آتا ہے تو آپ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, وقت آتا ہے تو غیبت بھی کرتے ہیں, وقت آتا ہے تو چغل خوری بھی کرتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کا قہر سے ڈریے, اللہ کے قہر سے ڈریے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے. دنیا میں آپ کا باپ آپ کو بچا لے رہا ہے, آپ کا بھائی آپ کو بچا لے رہا ہے, لیکن قبر کے گڑھا میں جب آپ جائیے گا نا, آج اگر ہم لوگ سمجھا دیتے ہیں حق بات تو لوگوں کو پورا لگ جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے یہ سب چیز پہ بولنے کی. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, میرا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا علم دیا ہے, اس علم کے اعتبار سے ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں, ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کو اوپر سختی نہیں کر سکتے ہیں. آج تو حال یہ ہے اگر کسی کو زیادہ بول دیا جائے تو وہ الٹا ایکشن لے لیتا ہے. تو کسی کے اوپر اگر ہاتھ چھوڑا جائے تو بہت مشکل بات ہے, کسی کے اوپر اگر ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو بہت مشکل کی بات ہے. جب بات برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے کیسے برداشت کر سکتا ہے انسان؟ برداشت نہیں کر سکتا. آج تو انسان یہ سوچتا ہے ہم کامیاب ہیں, ہم کامیاب, ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر آج ہماری باتوں سے اگر آپ کو تکلیف لگ رہی ہے, لیکن جب قبر میں جائیے گا نا, آج جس نچنیا کے چکر میں آپ پڑے ہیں, جس کو نچا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, قسم خدا کی آج آپ کو لگ رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن مر کے جب قبر میں جائیے گا اور جب فرشتے کوڑے ماریں گے نا اور جب قبر میں ناچیے گا نا, تب آپ کو لگے گا کہ دنیا میں کوئی سمجھانے والا مولانا ملا تھا, اس دن ہم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن آج پتا چل رہا ہے اگر اس مولانا کی بات کو مانے رہتے تو آج قبر میں میرا یہ حال نہیں ہوتا, آج قبر میں میرا یہ حال نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو اگر سمجھا دیا جائے تو کہتے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں, ہمارا باپ دادا ایسی شادی کرتے آیا ہے, ہمارے باپ دادا ایسی شادی کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی لوگ ایسا آپ کو سوال کرے اور کہے کہ آپ منع کر رہے ہیں یہ چیز, آپ آج بتا رہے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن ہمارے باپ دادا نے اسی طریقے سے شادی کیا تھا, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا باپ کا جب انتقال ہوا تھا تو ذرا بتائیے آپ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں گئے تھے نہیں گئے تھے؟ آپ کا باپ کس حال میں ہے آپ کو خبر ہے؟ نہیں. آپ کا باپ جنت میں یا جہنم میں کسی کو خبر ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے میرے باپ دادا نے یہ کیا ہے ہم کریں گے, تو یاد رکھو اگر تمہارے باپ یا تمہارے دادا یا پردادا یا لکڑ دادا اگر کوئی غلط کام کر کے گئے ہیں تو یہ مت سوچو کہ ہمارے باپ دادا جو کر کے گئے ہیں وہ صحیح تھا, بلکہ یہ سوچو ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے غلط کام کیا ہے, آپ اور ہم ان کی قبر میں نہیں جا رہے ہیں. یقین مانیے اگر وہ لوگ غلط کام کر کے گئے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب میں پھنسے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کر کے گئے ہیں تو اچھا کام کر کے گئے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دل و دماغ دیا ہے, عقل و شعور دیا ہے. تو آج سے آپ سمجھ جائیے کہ اسلام میں شادی میرے آقا کی سنت ہے, اور کبھی بھی شادی کیجیے تو دنیا دار کے دکھاوے کے مطابق نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی سنت کے مطابق شادی کیجیے. اگر دنیا والے شادی کرتے ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ فلاں صاحب کی شادی ہوئی تھی, 4 ناچنے والی آئی تھی, بڑا نام کمایا تھا, ہم اپنے گھر میں شادی کریں گے 8 ناچنے والی کو بلائیں گے تاکہ اس سے بھی زیادہ نام کما لیں گے. نہیں مسلمانوں, جس کے دروازے پہ 4 ناچنے والی آئی تھی اس کے دروازے پہ کم گنا ہوگا, لیکن اگر کمپٹیشن میں آ کے 4 ناچنے والی کے جگہ پہ اگر تم 8 ناچنے والی کو اگر اپنے دروازے پہ بلاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ اس سے میری عزت بڑھ جائے گی یا اس سے میرا شان بڑھ جائے گا, تو یاد رکھو نہ عزت بڑھ سکتی ہے نہ شان بڑھ سکتا ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک بھی تم ناپسند ہو جاؤ گے اور مدینے کے مصطفیٰ کے نزدیک بھی ناپسند ہو جاؤ گے. اس لیے مسلمانوں اگر اللہ کے نزدیک محبوب بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ جنت عطا کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز کرو. جس چیز کا حکم میرے آقا نے دیا ہے وہ چیز کرو. جس چیز کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا ہے اس چیز سے تم بھی دور رہو. میرے آقا نے جس چیز کو پسند نہیں کیا ہے اس چیز سے تم دور رہو. شادی میرے آقا کی سنت ہے,
میرے آقا نے خود شادی کیا. تاریخی کتاب کیا, نبی کی تو بات دور کی بات, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبی کی دور کی بات. آج بھی کسی اللہ والے کی شادی ہوتی ہے, کبھی تم شرکت کیے ہو گے, تم کبھی دیکھے ہو کہ کسی اللہ کے ولی یا کسی نیک بزرگ کی شادی ہو رہی ہو اور ناچنے والی آئی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اگر اسلام میں یہ چیزیں زائد ہوتی تو سب سے پہلے عالم ہی کرتے, سب سے پہلے عالم ہی کرتے, کیونکہ اسلام کی سمجھداری عوام سے زیادہ عالم کے پاس ہوتی ہے, عوام سے زیادہ عالم کے پاس ہوتی ہے. اگر یہ چیز درست ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ کرتے نا, سب سے پہلے ہم لوگ کرتے, لیکن یہ چیز درست نہیں ہے, اس لیے کوئی عالم اسے پسند نہیں کرتا ہے. اور عالم اپنا ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہر پروگرام میں, ہر میلاد میں, جلسہ ہو, میلاد ہو, عرس ہو, کسی بھی موقع پہ اگر عالم جاتا ہے تو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے دور کرے, اس چیز سے دور کرے. اور عالم بتا سکتا ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. ہم لوگ بتا سکتے ہیں, آپ سے زبردستی کروا نہیں سکتے. بہت ساری جگہ پہ اگر مولانا بتا بھی دیتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب, اگر آپ نکاح نہیں پڑھائے گا کوئی بات نہیں ہے, آرکیسٹرا تو آئے گا, 500 روپیہ لگے گا, کوئی مولانا آئے گا نکاح پڑھا کے چلا جائے گا. یاد رکھو, آج تو تم پیسے کے بل بوتے پہ سب چیز سوچ رہے ہو کہ ہو جائے گا, پیسے کے بل بوتے پہ ہر چیز ہو جائے گا. لیکن جس شادی میں پیسے کے بل بوتے پہ شادی کر رہے ہو, وہی شادی 1 مہینے ہوتے ہیں, 1 مہینے کے بعد جب گھر میں کوئی لفڑا ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کے پاس دوڑتے, مولوی صاحب تعویذ بتا دیجیے. کیا بات ہے, ہماری بیٹی گئی ہے, اس کے سسرال والے اس کو تکلیف دے رہے ہیں. کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ تو وقت پہ کھانا نہیں دے رہے ہیں, میری بیٹی پریشان ہے, میری بیٹی فون کیا تھا, میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے, ہماری دم گھٹ رہی ہے. آخر کیوں, وجہ کیا ہے؟ قسم خدا کی اگر چاہتے ہو بیٹے کے شادی کے بعد یا بیٹی کی شادی کے بعد جس گھر میں تمہاری بیٹی جائے اس گھر میں خوشحالی آئے, تو قسم خدا کی تم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی حضور کی سنتوں کے مطابق کر کے دیکھو, حضور کی سنتوں کے مطابق کر کے دیکھو. قسم خدا کی میں کہتا ہوں, غریب گھر میں بھی اگر اپنی بیٹی کو تم شادی کرو گے, خوشحالی آئی زندگی گزارے گی, کبھی آپ سے شکایت نہیں کرے گی. آج حال کیا ہے, شادی کے لیے جب ہم اپنے بیٹی کے لیے کوئی لڑکا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا حال ہے, آپ بھی جاتے ہوں گے, کہیں دیکھے ہوں گے. حال یہ ہے کہ اگر جس گھر میں گئے ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے گئے ہیں, اگر لڑکا والا اچھا کھانا کھلا دے تو بڑا تعریف کرتا ہے باپ, اور باپ کے ساتھ ساتھ 10 کو 12 کو جو مہمان ہے تو بھی تعریف کرتا ہے, خالی وہ سب کہتا ہے ہاں بڑا بڑھیا کھانا کھلایا ہے. اپنی بیٹی کی شادی اسی گھر میں کی. اگر گھر دیکھ لیا اچھا, باپ کہتا ہاں بڑا گھر ہے, اچھا گھر ہے, اسی گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کر. الگ یہ ہے لڑکا دیکھنے کے لیے, کھانا اچھا مل جائے, کھانا پہ کرتا ہے چلو ہم اپنی بیٹی کی شادی اسی گھر میں کریں گے. زمین و جائیداد زیادہ ہو, دیکھ کے باپ کہتا ہاں اسی گھر میں شادی کریں گے. کان کھول کے سن لو مسلمان ہو, اگر پیسہ دیکھ کر اگر اپنی بیٹی کی شادی کرو گے, پیسہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. گھر دیکھ کر شادی کرو گے, گھر ختم ہو جانے والی چیز ہے. انسان کا وقت ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے, ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے. بہت سارے دولت مندوں کا تم نے واقعہ سنا ہوگا, فرعون کے پاس بے شمار دولت تھی, بے شمار دولت تھی, اتنی دولت تھی. قرآن بتاتا ہے کہ فرعون نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی, میں تم سب کا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تم سب کا خدا ہوں. اتنی دولت تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت کو کیا کیا, دریائے نیل میں غرق کر دیا. اللہ اگر دولت دیا ہے قدر کرو, اور کبھی بھی جاؤ اپنے بیٹے یا بیٹی کی رشتہ لے کر تو اچھا کھانا کھانے کے بعد فیصلہ مت کرو, اچھا مقام دیکھ کر فیصلہ مت کرو, زمین و جائیداد دیکھ کر فیصلہ مت کرو. اگر فیصلہ کرنا ہے, لڑکا دیندار ہے فیصلہ کر دو, لڑکا دیندار ہے فیصلہ کر دو. ہر چیز اچھی ہو, یا مکان اچھا ہو, دکان اچھا ہو, زمین ہو, جائیداد ہو, ہر چیز ہو, لیکن لڑکا اگر شرابی ہو تو کیا لڑکی کی اچھی زندگی گزر سکتی ہے؟ کبھی نہیں گزر سکتی. ہم لوگ سال میں اگر 50 کو نہیں تو 30 کو نکاح ضرور پڑھاتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے آدمی ہیں, سال میں 50 کو نکاح نہیں تو کم سے کم 30 کو یا 20 کو نکاح ضرور پڑھا لیتے ہیں. لیکن سال میں آج حالات ایسے آ گئے ہیں, ہم لوگ سال میں 50 کو یا 30 کو نکاح پڑھا رہے ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ مہینے میں 30 کو طلاق ہو جا رہا ہے. بناوٹی بات نہیں ہے. پہلے کے لوگ اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرتے تھے نا تو طلاق کا نوبت نہیں آتی تھی, طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. لیکن نیا جنریشن ہے, حال تو یہ ہے لڑکی کی شادی ہوئی 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہے. بعض جگہ سے خبر یہ آتی ہے کہ لڑکا اس لڑکی کو رکھنا نہیں چاہتا ہے. آخر وجہ کیا ہے بھائی, آخر وجہ کیا ہے؟ انسان تو انسان ہی ہے نا.
कल जो इंसान थे आज भी इंसान ही। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर वजह अगर आप इसका जायजा लीजिएगा तो पता ये चलेगा कि पहले के लोग जो शादी करते थे ना, सादगी के साथ शादी करते थे। लेकिन आज के दौर में डिजिटल जमाना हो गया है, फैसिलिटी वाला जमाना है। अपने बेटे या बेटी की शादी में हर चीज का इंतजाम होना जरूरी है, हर चीज का इंतजाम होना जरूरी है। बहुत सारे उम्र दराज लोग बैठे हुए हैं। गालिबन मैं 1997 में पैदा हुआ और 2002 या 2004 से जब मैं होश संभाला हूँ तो 2004 या 5 का रिवाज ये था कि लोग जिसके घर में शादी होती थी एक कपड़ा बिछा दिया जाता था, कपड़े के ऊपर बैठ के पूरे लोग खाना खा लेते थे, पूरे लोग खाना खा लेते थे। लेकिन अगर आज कपड़ा क्या फुल ओपन बोला जाता हूँ, साड़ी बिछा दिया जाता था और प्लेट लगा दिया जाता था। लोग साड़ी के ऊपर बैठ कर खाना खाकर उठ जाते थे, खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन आज कहीं शादी की जाए और नीचे कपड़ा बिछा दिया जाए तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। चाहे खाना खाने के लिए 2 घंटा से 4 घंटा इंतजार क्यों ना पड़ रहा है, नीचे बैठ कर नहीं खाएंगे, कुर्सी रहेगा तभी खाना खाएंगे। नया जमाना है। बड़े कह ये दौरे जमाना खत्म हुआ तो कुर्सी का जमाना आया। अब एक और नया जमाना, नया जनरेशन में नया फंक्शन ये है कि अब हमारे घर में जब शादी हो रही है तो बम्पर सिस्टम लगा हुआ है। क्या हाल है? जिस जगह हम शादी में जा रहे हैं क्या हाल है? जानवर की तरह खाना खा रहे हैं, जानवर की तरह। अपने हाथ में भिखारी की तरह प्लेट ले रहे हैं अपना मन से। लोग कहता बड़ी स्टाइलिश चीज है, अपना पसंद से जो खाना है खाइए। अरे जमाना जो है ना, और जमाने को देखकर जो हम लोग अंग्रेज बने हुए हैं, याद रखो बहुत बुरा काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत बुरा काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम लगा है, अपने से निकालिए, खाते रहिए खाते रहिए। और हाल क्या है? खाना जितना खाते नहीं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं, खाना जितना खाते नहीं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं। प्लेट ले लिए, खड़ा है और जहां जगह मिला वहीं खड़ा होकर खाना शुरू कर दिए। जब तक खड़ा होकर खाना जानते हैं जानवरों की तरीका है, खड़ा होकर खाना या पीना ये जानवरों का तरीका है। इंसान का तरीका ये नहीं कि इंसान कभी खड़ा होकर खाना खाए, इंसान का तरीका ये नहीं है कि कभी इंसान खड़ा होकर पानी पिए। अगर नबी के मानने वाले हो ना यार तो नबी से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कहाँ जा रहे हो? नबी से दूर हट जाओगे कभी कामयाब नहीं हो सकते हो मुसलमान। नया जनरेशन के चक्कर में मत करो, अगर इस चक्कर में पड़ोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। मेरे आका की सुन्नत को देखो, मेरे आका ने किस चीज़ को कैसे पसंद किया है, उस एतबार से अगर तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नए जनरेशन के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं पार्टी में तो बम्पर सिस्टम में तो खड़ा है, ऐसा हरगिज़ न करें। अगर कहीं इस चीज़ का इंतजाम भी हो तो आप खाना लेने बाद आप अपने हाथों से, लेकिन कहीं जगह देकर बैठकर खाना खाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो आने वाले बाराती हैं जो कोई जानवर नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला गुलाम है। इससे लोग आपको अंदाजा लगाते हैं, इससे लोग आपको अंदाजा लगाते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो सिस्टम ही ऐसा है, खड़ा होकर खाना है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको देखते भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग गैर भी अगर आपको देखता है तो यही कहता है कि इन्हीं लोग का शरीयत है और इन्हीं लोग का मजहब में है कि खाना बैठकर खाना सुन्नत है, और आज यही लोग खड़े खड़े खा रहे हैं। हमने इस्लाम को खुद बदनाम किया, हमने इस्लाम को खुद बदनाम किया, और आज कहते हैं कि इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है, खुदा ने मजहब इस्लाम में वो लचक रखा है, इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही उभरता जाएगा। खुदा ने वो लचक रखी है मजहब इस्लाम में, दुनिया इसे दबाने की कोशिश करेगी लेकिन ये उभरता जाएगा। दुनिया के दबाने से इस्लाम कभी नहीं दब सकता, क्योंकि इस्लाम बनाया हुआ किसी और का नहीं बल्कि खुदा का बनाया हुआ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, ये खुदा का बनाया हुआ दीन इस्लाम है। दुनिया के दबाने से कभी और दुनिया के मिटाने से कभी नहीं मिट सकता है। लेकिन अगर आज इस्लाम को अगर लोग बुरा भला कर रहे हैं तो हमारी अमल और किरदार की वजह से कह रहे हैं। आज हमारा काम ऐसा हो गया जिसे दुनिया कह रही कि ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम के सच्चे मानने वाले नहीं है। इस्लाम के सच्चे मानने वाले गैर के तरीके के मुताबिक शादी करेंगे, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। अगर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो आप अपने बेटे या बेटी की शादी सादगी के साथ करें, और अगर आपके पड़ोस वाले या आपके खानदान वाले आपसे नाराज हो जाते कोई बात नहीं है, आप अपने खानदान वालों को या पड़ोस वालों को जवाब दीजिए कि तुम अगर नाराज हो जा रहे हो हमारे बेटे की शादी से या बेटी की शादी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी या हमारे बच्चे की शादी या हमारी बच्चिया की शादी होगी तो दुनियादार के सुन्नतों के मुताबिक नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के सुन्नतों के मुताबिक होगी। ये निकाह किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। मैं पहले ही कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि निकाह किसकी सुन्नत है, तो आपका जवाब ये होगा मौलाना निकाह मेरी आका की सुन्नत है।
यार जब निकाह मेरी आका की सुन्नत है तो फिर आका के तरीके से करो ना। आका ने खुद शादी किया, आका ने खुद शादी की और शादी करने के बाद दुनिया वालों को बता दिया कि किस तरीके से शादी करनी चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आका की लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी, जिसे दुनिया फातिमा के नाम से जानती है, कसम खुदा की जब शादी के ताल्लुक से तकरीर की जाए और फातिमा की ज़िंदगी बयान न की जाए ना, तो मुझे लगता है कि शादी की प्रोग्राम ही अधूरा रह जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह का पैगाम बड़े बड़े मुल्क के बादशाह के बेटों के साथ निकाह का पैगाम आया करता था, लेकिन हुजूर बार बार इनकार कर देते थे, हुजूर बार बार इनकार कर देते थे। ज़रा सोचिए, आज तो हाल ये है कि हम पैसा वाले देख लेते हैं, पैसे वाले घर का लड़का देख लेते हैं तो फौरन पसंद कर लेते हैं। लड़का जुगारी क्यों ना हो, शराबी क्यों ना हो, बेनमाजी क्यों ना हो, बेदीन क्यों ना हो, लेकिन अगर पैसा है तो सब चीज़ है। आज तो बाज़ाब्ता हम लोग जाते हैं तो लड़का का दीनदारी नहीं देखते, लड़का कमाने वाला है कि नहीं, लड़का क्या काम करता है। बैकग्राउंड में उसका दीनदारी नहीं पूछते हैं, बैकग्राउंड में ये पूछते हैं कि लड़का कितना कमा लेता है, सरकारी नौकरी वाला है या नहीं है, क्या करोगे पैसा लेकर यार, क्या करोगे पैसा लेकर। अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का क्यों ना हो, 50,000 नहीं, मैं कहता हूँ तुमको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर लड़का 1 लाख रुपया भी कमाता हो, लेकिन अगर लड़का 1 लाख रुपया कमा रहा हो, तुम उसके घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, उस लड़के से शादी कर रहे हो और लड़का तुम्हारी बेटी के साथ जिंदगी ना गुजारे, तो क्या तुम्हारी बेटी खुश रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। एक औरत के लिए सबसे बड़ा जेवर कान का झुमका नहीं होता है, नाक का नथिया नहीं होता है, पांव का पायल नहीं होता है। कभी किसी औरत से मिलिए जिसका शौहर का इंतकाल हो जाता है, कभी उस औरत से मिलिए जिसका शौहर का इंतकाल हो जाता है, कसम खुदा की वो औरत आपको जवाब देगी कि शौहर क्या चीज होता है, शौहर क्या चीज होता है। जब तक शौहर जिंदा रहता है, जरूरी नहीं कि महीना 50,000 रुपया कमाए, जरूरी नहीं कि महीना 10,000 रुपया कमाए, जरूरी नहीं कि महीना 5,000 रुपया कमाए। बीबी की ख्वाहिश ये होती है कम कमाए लेकिन हमारे साथ जिंदगी गुजारे। आज हम अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं तो क्या किस लिए शादी करते हैं? पैसों के लिए शादी करते हैं? नहीं। इस्लाम में शादी इसलिए है, कुरान बताता है तस्कुनु इलैहा, कि शादी से मर्द को औरतों से सुकून मिलता है और औरतों को मर्दों से सुकून मिलता है। अगर पैसे वाले मर्द हो लेकिन औरत की इज्जत न करे, औरत के साथ जिंदगी न गुजारे, तो कभी सुकून नहीं हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, ऐसे शौहर का इंतखाब करो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटी के लिए ऐसे लड़का का तलाश करो जो लड़का कम कमा ले लेकिन तुम्हारी बेटी को खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने दे। तुम्हारी बेटी महल में रहेगी, सुकून से नहीं रह सकती है, लेकिन शौहर के साथ रहेगी, टूटी हुई झोपड़ी में रहेगी, सुकून के साथ रहेगी। तुम्हारी बेटी महल में बिरयानी खाकर खुश नहीं रह सकती है, लेकिन गरीब घर में सूखी हुई रोटी खाकर खुश रह सकती है शौहर के साथ। शौहर है तो सब कुछ है, शौहर नहीं तो कुछ नहीं। बाद घरों में मैं देखता हूँ कि अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो शौहर का इंतकाल हो जाए ना, तो औरतें अपनी हाथ की चूड़ियां फोड़ देती है। आपने देखा होगा, औरतें अपने कान के बालिया को निकाल देती है, औरतें अपने नाक की नथिया को निकाल देती है, जेवर को निकाल देती है, पाँव के पायल को निकाल देती है। उस औरत से पूछिए कि तुम्हारा शौहर का इंतकाल हुआ है, क्या जरूरत थी हाथ की चूड़ियां फोड़ने के लिए, क्या जरूरत थी कान से बालियां निकालने के लिए, क्या जरूरत थी नाक से नथिया निकालने के लिए, या क्या जरूरत थी पाँव से पायल को निकालने के लिए? तो औरत यही जवाब देगी, मैं सजती सवरती अपने शौहर के लिए थी। अगर कलाई में हमारी चूड़ियां सजी थी तो शौहर के लिए सजी थी, अगर कान में बालियां थी तो शौहर के लिए थी। अब अगर शौहर ही नहीं तो कान की बालियां खूबसूरती नहीं दे सकती है, अगर शौहर ही नहीं तो नाक की नथिया खूबसूरती नहीं दे सकती है, अगर शौहर ही नहीं तो पाए के पायल खूबसूरतियां नहीं दे सकती है। सबसे खूबसूरत तो मैं उस वक्त थी जब तक मेरा शौहर मेरे सामने जिंदा था, तब तक मैं खूबसूरत थी। अब मेरा शौहर ही जिंदा नहीं तो मैं कहां से खूबसूरत हो सकती। शौहर सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मुसलमानों, कभी भी शादी करो तो नेक लड़का तलाश करो। आपकी बेटी को अच्छा खाना खिलाए या ना खिलाए, लेकिन आपकी बेटी के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने वाले शौहर की तलाश करें और अपनी बेटी की शादी करें। कसम खुदा की, कभी आप शादी करने के बाद कभी परेशान नहीं होंगे। आज हाल ये है ना, ज्यादा कमाने वाला लड़का विदेश चला गया,
फोन आने लगा, मेरा शौहर मेरे साथ नहीं रहता, हम उसके घर में नहीं रहेंगे। अच्छा कमाने वाला है, पैसा कमाने वाला, दुनिया क्या पैसे पे है ना। ज्यादा कमाने वाला वहां गया, मालूम चला फला के साथ चक्कर है, फला के साथ चक्कर है, उसके साथ जिंदगी गुजारा, घर आ नहीं है। अब लोग शिकायत कर रहे हैं, बेटी शिकायत कर रही है, जिसकी शादी हुई है उसकी दम घुटती है। आप तो ये सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दिया, हमने काम अपना पूरा कर लिया, लेकिन याद रखो आपने काम पूरा नहीं किया, बल्कि उसकी जिंदगी में आपने जिंदगी को जहन्नम बना दिया, जिंदगी को जहन्नम बना दिया। आप शादी करने से पहले आपका बैकग्राउंड पता करना लाजिम था। जिस तरह एक बाप के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की शादी करे, उसी बाप के ऊपर यह जिम्मेदारी है शादी करने से पहले दीनदार लड़का तलाश करके शादी करे, दीनदार लड़का तलाश करके शादी करे। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, शादी बार बार नहीं होती है साहब। बहुत अरमान होते हैं बाप के दिल में, बहुत अरमान होती है माँ के दिल में। बाप एक बेटे की परवरिश इस उम्मीद पे करता है कि जब मेरा बेटा जवान होगा ना तो इसको दूल्हा बनता देखूंगा। माँ एक बेटी की परवरिश इस उम्मीद पे करती है कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो इसे दुल्हन बनाऊंगी। कसम खुदा की वो बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बाप अपने बेटे को दूल्हा बनाता होगा, जो बाप अपनी बेटियों को दुल्हन बनाता होगा। कसम खुदा की बाप उस दिन देखिएगा, आप जिस दिन लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, अगर लड़के की शादी हो रही है ना, लड़के को कपड़ा पहनाया जा रहा है, बाप दिल ही दिल में खुश है कि मेरे बेटे को दूल्हा बनाया जा रहा है, मेरे बेटे को दूल्हा बनाया जा रहा है। गरीब बाप है लेकिन मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे खुशी, खुशी के मारे समा नहीं रहा, परेशान, खुश है, बार बार यही है जिसे मिल रहा है, देखिए मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, देखिए मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि वो बाप अपने बेटे की परवरिश 15 से 20 साल तक किया, वो बाप डेली अपने बेटे के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है, वो बाप बचपना भी अपने बेटे का देखा है, वो बाप जवानी भी अपने बेटा का देखा है। लेकिन उस दिन कितना खुश होता है जिस दिन अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाता है, बड़ा खुश होता है कि आज मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ है। और माँ भी उस दिन बड़ी खुश होती है जिस दिन देखती है कि हमारी बेटी दुल्हन बनी हुई है। अगल बगल पड़ोस के लोग आते हैं, सबको माँ कहते हैं देखिए आज मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए मेरी बेटी आज दुल्हन बनी हुई है। काफी माँ खुश होती है। लेकिन वही बच्ची जिसकी शादी हो जाती है, अगर वही बच्ची अपने ससुराल जाए और ससुराल जाने के बाद अपने बाप से या माँ से फोन करके कहे माँ आपने तो मेरी खुशी के लिए शादी कर दी, लेकिन मैं इस घर में खुश नहीं हूँ, कसम खुदा की वो बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। जो एक बाप अपने बेटी के शादी के लिए या अपने बेटे के शादी के लिए 2-3 लाख रुपए कर्ज लेकर शादी किया होगा, ये बाप इस उम्मीद पे कर्ज लिया था ना, ये 2-3 लाख रुपए कर्ज ले लेंगे, अपने बेटे की शादी कर देंगे या बेटी की शादी कर देंगे, हमारी बेटिया की जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन अगर फोन आ जाता है कि बेटी खुश नहीं है तो बाप के दिल पे क्या गुजरता है। बाप घरों में तो ऐसा होता है कि बाप सदमे से मर जाता है, बाप सदमे से मर जाता है कि जिस खुशी के लिए मैंने 5 लाख 4 लाख रुपए कर्ज किया था ताकि मेरी बेटी खुशहाली जिंदगी गुजारे, लेकिन आज वही बेटी मुझसे शिकायत कर रही है कि अब्बू जान आपने किस जहन्नम में मुझे फंसा दिया है। यहाँ तो हाल ये है कि जिस तरह मैं अपने घर में खुश रहती थी उस तरह यहाँ खुश भी नहीं रह सकती हूँ। जिस तरह हाल ये है कि अपने घर में जब दिल करता था भूख लगती थी खाना खा लेती थी, लेकिन यहाँ हाल तो ये है कि 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए लेकिन खाना का कोई नामो निशान नहीं है। उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बाप इस उम्मीद से शादी किया होगा कि मेरी बेटी शादी के बाद खुश होगी, लेकिन बेटी ना खुश है। इसलिए मुसलमानों कभी भी शादी करो अच्छे घराने में शादी करो, अच्छे घराने में शादी करो। और ये मैं अपनी फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ। दीनदार घराने में शादी करोगे ये तुम्हारे फायदा है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के किरदार को अपनी बेटी को पढ़ाइए, और शादी करने से पहले जिम्मेदारी है कि अपने बेटे या बेटी को इल्म दीन जरूर सिखाइए। इसलिए इल्म दीन सिखाइए कि आज अगर घर बिगड़ रहा है ना, ससुराल जाने के बाद अगर लड़की अपने ससुराल की शिकायत कर रही है ना, तो इल्म ना होने की वजह से शिकायत कर रही है, इल्म ना होने की वजह से शिकायत कर रही है। अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी ना तो ससुराल में अगर दुख भी तकलीफ भी होगा ना तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी तो फौरन कदम उठा देती है। क्या कदम उठा देती है? फौरन ससुराल वाले को जवाब दे देती है, तुम मुझे तकलीफ दोगे, तुम जानते नहीं हो मेरे बाप के पास कितनी दौलत है, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो कि मेरा भाई कितना मालदार है, तुम मेरे भाई का ताकत का अंदाजा नहीं लगाया कि मेरे भाई कितना पावरफुल है। अगर बेटी के पास इल्म होता ना, बेटी अगर फातिमा की जिंदगी को पढ़ी होती तो बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। और बाप भी बड़ा जल्दी एक्शन में आता है, बेटी अगर शिकायत कर दे तो बाप कहता बेटी कोई बात नहीं है, 20 साल परवरिश की है, आ जाओ, तुमको हम रख लेंगे अपने घर में, आओ, कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तकलीफ में जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाप का हक ये नहीं कि बेटी को शादी कर दिया है तो फिर अगर बेटी अगर ससुराल वाले की शिकायत कर रही है तब ससुराल वाले पर फौरन एक्शन ले, एक्शन नहीं लेना चाहिए। किरदार पढ़िए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किरदार पढ़िए। मुस्तफ़ा की बेटी है सैयदा फातिमा,
हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला से जिस वक्त निकाह का पैगाम हुजूर ने दिया था ना, उस वक्त से हजरत अली ने कहा, हुजूर आप जानते हैं कि अली के पास खाने के लिए खाना नहीं है, आप जानते हैं कि अली के पास रहने के लिए मकान नहीं है, फिर भी आप फातिमा का निकाह मुझसे क्यों करना चाहते हैं? फातिमा का निकाह का पैगाम तो बादशाह के बेटे के साथ आया था, आपने इनकार कर दिया, लेकिन अली को क्यों पसंद कर रहे हैं? अली को क्यों पसंद कर रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, अली फातिमा के लिए मैंने तुझे पसंद नहीं बल्कि खुदा ने तुझे पसंद किया। अली अपनी बेटी फातिमा के लिए मैं तुझे पसंद नहीं कर रहा हूं बल्कि खुदा ने तुझे पसंद किया है। और जो खुदा की पसंद है वो मुस्तफा की पसंद है, जो खुदा की पसंद है वो मुस्तफा की पसंद है। अलगर्ज हजरत अली के साथ निकाह हो जाती है। मैं दर्श देना चाहता हूँ वो लड़की जो फौरन अपने ससुराल वाले की शिकायत करती है अपने मैके में, याद रखे कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। सैयदा फातिमा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के घर आई है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को खाना नहीं मिला, अली के पास आई, 3 दिन फाके में जिंदगी गुजार ली, 3 दिन फाके में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन हुजूर से शिकायत नहीं की, हुजूर से शिकायत नहीं की, क्योंकि फातिमा जानती थी, फातिमा जानती थी कि अब हमारे लिए मेरा बाप का घर नहीं बल्कि अली का घर ही है। फातिमा जानती थी अब मेरे लिए मेरे बाप का घर नहीं बल्कि अली का घर है। और बाज़ाब्ता हुजूर ने ये पैगाम आम भी कर दिया। एक बार की बात है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किसी बात पे अनबिन हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, कायनात में सबसे अच्छा दूल्हा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला और कायनात में सबसे अच्छी दुल्हन सैयदा फातिमा है, याद रखिएगा। अब क्यों? मुस्तफा की बेटी से अफजल कोई बेटियां नहीं हो सकती, मुस्तफा के बेटी से अफजल कोई बेटी नहीं हो सकती। और अलगद में ये भी कह दूं, मेरे आका तो वो है जो तमाम नबियों से अफजल है, क्योंकि सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमा दिया, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पता ये चला कि नबी की बेटी नहीं बल्कि तमाम नबियों की बेटी की, तमाम नबियों के इमाम की बेटी थी। मेरे आका तमाम नबियों से अफजल है ना, तो तमाम नबियों से अफजल नबी की बेटी अफजल ही हुआ करती है। आदम की अगर बेटी है, आदम नबी है लेकिन मर्तबा में तो मुस्तफा से अफजल नहीं है ना। अगर आदम की भी बेटी है तो मुस्तफा की बेटी से अफजल नहीं हो सकती है, अगर नूह की भी बेटी है तो मुस्तफा की बेटी से अफजल नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे आका सब नबी से अफजल है, तो सब नबी से अफजल नबी की बेटी सब नबी की बेटियों से अफजल होगी। अब सब नबी की बेटी यो से अफजल बेटी मेरे आका की बेटी यानी सैयदा फातिमा, और सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ। और कुछ दिन गुजरे थे कि आपस में मौला अली और सैयदा फातिमा के दरमियान किसी बात पे झगड़ा नहीं। आज तो हाल ये है कि शौहर एक बात बोलता है तो अगर बीबी अगर बुनिया भर के रहती है, पैसे वाले भर के रहती है, तो शौहर एगो बोलेगा तो बीबी 10 को सुना देगी। अब शौहर परेशान रहता है, सुन के बर्दाश्त भी करता है, जानता कहीं ऐसा ना हो छोड़ छाड़ के चली जाएगी तो और दिक्कत है, सुन के बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कुरान बताता है रिजालु कव्वामून अलल निसा कि कभी औरत को हाकिम बनने मत दो। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कि औरतों का हाकिम उसका मर्द होता है, औरतों का हाकिम उसका मर्द होता है। और आज अगर घर में अगर खुरफात जन्म ले रहे हैं या गलत काम हो रहा है तो मर्दों की वजह से नहीं, ज्यादातर औरतों की वजह से हो रहा है। आज अगर बेटे के शादी में ऑर्केस्ट्रा बाप नहीं कर रहा है तो माँ करिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो सादा सादा ठीक नहीं लगेगा। अब बाप परेशान होकर बीबी की बात मान लेता है और बीबी की बात मानने के बाद बेटे के शादी में ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर देता है। क्या जवाब दोगी, क्या जवाब दोगी? मरोगी कब्र में। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अगर जाओगे और सैयदा फातिमा कहेंगी मेरी कनीज़ों में से नहीं है, तुम बाहर चले जाओ तो कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। फातिमा के कनीज़ बनकर जिंदगी गुजारो खातून, तब तुम कामयाब हो सकती है। अलगद मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी बात पे अनबीन हो गई। अब सैयदा फातिमा क्या सोचती है? सैयदा फातिमा सोचती है कि अली की शिकायत मैं अपने बाबा हुजूर से करूंगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे जो बाप हैं वो अली को समझाएंगे। अब फातिमा किसी बात पे अनबीन हुई, फातिमा अपने बाप के दरवाजे पे चली गई, हुजूर के दरवाजे पे गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? सैयदा फातिमा ने कहा अबू जान मैं फातिमा, अबू जान मैं फातिमा।
हुजूर ने फरमाया मैं किसी फातिमा को नहीं पहचानता, तुम अपने घर चले जाओ। मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा शादी से पहले ये कहते थे कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, इसे अगर तकलीफ होती है तो मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है, वो आका फरमा रहे हैं मैं किसी फातिमा को नहीं जानता, तो अपने घर चले जाओ। फातिमा सोचने लगी आका तो इतनी मोहब्बत करते थे हमसे, जिगर का टुकड़ा बताते थे हमें, और आज मेरे बाप ने मुझे क्यों नहीं पहचाना। आका ने फरमाया नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। सैयदा फातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई। सोचा कुछ देर के बाद जाऊंगी, दरवाजा खुल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद गई, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद फिर अंदर से आवाज आई, कौन? सैयदा फातिमा ने कहा अबू जान मैं आपकी बेटी फातिमा। हुजूर ने फरमाया मैं किसी फातिमा को नहीं जानता, अपने घर चले जाओ। अब सैयदा के दिल पे क्या गुजरता होगा। सैयदा फातिमा रोते रोते ज़ारो पता फिर वापस आई। आने के बाद जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि फातिमा की आंख में आंसू है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या मैंने मुझे कोई तकलीफ दिया जिसकी वजह से रो रही हो? फातिमा ने कहा नहीं। तो क्या क्यों रो रही हो? सैयदा फातिमा ने कहा अली बात ऐसी है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जिस बात का अनबन हुआ था, मैं सोची कि तुम्हारी शिकायत मैं अपने बाबा जान यानी हुजूर से करूं, और शिकायत करने के लिए हुजूर की बारगाह में गई थी। दरवाज़ा खटखटाया लेकिन हुजूर ने दरवाज़ा नहीं खोला। हुजूर ने कहा कि मैं किसी फातिमा को नहीं जानता, मैं किसी फातिमा को नहीं जानता, इसलिए मैं रोती हुई आ रही हूँ कि जो बाप मुझसे कहते थे कि जिगर का टुकड़ा है, फातिमा से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और आज वही नबी वही मेरा बाप मुझे नहीं पहचाना। आखिर बात क्या है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहते हैं कि फातिमा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला दोनों साथ में, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला आगे आगे चल रहे, सैयदा फातिमा पीछे पीछे चल रही। दरवाजे तक पहुँचे। अली ने कहा फातिमा इससे पहले भी तुम आई थी, तुमने दरवाज़ा खटखटाया था, हुजूर ने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, अब दरवाज़ा मैं नहीं खटखटाऊंगा बल्कि दरवाज़ा तुम्ही को खटखटाना है, दरवाज़ा तुम्ही को खटखटाना है। अब वो लोग से मैं यहाँ मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को इल्म गैब नहीं था, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी के इल्म गैब था या नहीं। अब सैयदा फातिमा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने, सैयदा फातिमा जब अली के साथ गई है, दरवाज़ा खटखटाया है, हुजूर ने कहा कौन? फातिमा ने कहा मैं आपकी बेटी। जिस तरह दो बार सवाल किया था फिर उसी तरह हुजूर ने पूछा कौन? बेटी ने जवाब दिया मैं आपकी बेटी फातिमा। हुजूर ने कहा उनको दरवाजा खोलता हूँ। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पर खड़े थे और हुजूर ने दरवाजा को खोला, और दरवाजा खोलने के बाद मौला अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला दाखिल हुए। सैयदा फातिमा ने सवाल किया मेरे अब्बू जान, अभी आने से पहले मैं 2 बार आपके घर तक यानी आपके दरवाजे तक आई थी, मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाया था लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आपने तीसरी बार दरवाजा क्यों खोला? हुजूर ने फरमाया फातिमा इससे पहले जब तुम आई थी तुम अकेली आई थी, इससे पहले जब आई थी 2 बार तुम अकेली आई थी, उस वक्त तुम्हारे साथ अली नहीं थे। अब मैं कहना चाहता हूँ हुजूर तो भी दरवाजा नहीं खोले थे, लेकिन हुजूर को खबर कैसे था? तो हुजूर कैसे जानते थे कि इस बार फातिमा के साथ कोई और नहीं बल्कि उनका शौहर अली आया है? गोया इस बात से पता चलता है हुजूर के इल्म गैब इतना था कि हुजूर बंद दरवाजे के आगे के भी हाल जानते थे कि फातिमा इस बार अकेली नहीं बल्कि अपने शौहर अली के साथ आई है। और हुजूर ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा बेटी बात बताओ क्या बात है? सैयदा फातिमा ने तमाम बातों को बताया। मौला अली कहते हैं कि मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं सोच रहा था कि फातिमा शिकायत कर देंगे, पता नहीं हुजूर क्या बोलेंगे क्या नहीं, हुजूर क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने अपनी बेटी को डांटा, हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को डांटा और कहा बेटी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी मैं तुम्हारी गलतियों को या मैं तुम्हारी हर बातों को मान जाया करता था। अगर मैं नाराज हो जाता था किसी बात से तो तुम मुझे खुश करती थी, लेकिन अब अगर तुम नाराज हो जाओगी तो तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करना बल्कि अपने शौहर अली को खुश करने की कोशिश करना। बेटी जब अली तुमसे राजी रहेंगे तब तुम्हारा बाप मुस्तफा तुमसे राजी होगा। पता क्या चला? एक बीवी से अगर शौहर राजी है तो मुस्तफा राजी है, अगर बीवी से शौहर राजी नहीं तो मुस्तफा कभी राजी नहीं हो सकता है। तो बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है। अलबत्त मैं तेजी के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब जरूरत है
کہ بیوی کو چاہیے اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارے تاکہ شوہر راضی رہے، اور شوہر کو بھی چاہیے اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارے کہ اس سے اس کی بیوی ناراض نہ ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خوش رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو خوش رکھے۔ بیوی کے لیے شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا درست ہوتا، جائز ہوتا، تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، لیکن خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور دوسرا مقام کیا ہے شوہر کا؟ اگر شوہر کے جسم پر پورے زخم سے جسم بھرے ہو اور ہر زخم سے پیپ بہتا ہو، ہر زخم سے پیپ بہتا ہو، اور بیوی اپنی زبان سے، اپنی جیب سے اس زخم کے پیپ کو چاٹ کر صاف کرے، پورے جسم پر زخم بھرے ہو، شوہر کے پورے جسم پر زخم بھرے ہو اور زخم سے پیپ بہتا ہو، اور بیوی اپنی زبان سے پورے جسم کے زخم کو، پیپ کو صاف کر دے اور سوچے کہ شوہر کا حق ادا ہو گیا، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ شوہر کا مقام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عورت جو عبادت کرتی ہے اور نہیں عبادت کرتے پھر عبادت کرے، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ اور رسول کے بعد اس کا شوہر کا حق ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے جس گھر میں لڑکی جائے اپنے شوہر کی عزت کرے، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہر چیز کا پیغام دیا ہے، بیوی سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے، ماں سے محبت کرنے کا پیغام دیا، باپ سے محبت کرنے کا پیغام دیا۔ الغرض مصطفیٰ نے ہم سبوں کو ساری باتیں بتائے ہیں، اور مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر کے دنیا میں بتا دیا ہے۔ حضور چاہتے تو مالدار بادشاہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام کر سکتے تھے، لیکن حضور جانتے تھے اگر میں یہ چیز کر لوں گا تو کل دنیا والے کہیں یہ نہ سوچے کہ لڑکا مالدار ہو تبھی نکاح کیا جائے گا، بلکہ حضور نے غریب علی سے نکاح کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا دولت مند ہو تب نکاح کیا جائے، لڑکا دولت مند نہیں ہے، اگر اتنا کما لیتا ہو کہ اپنی زندگی بھی گزار لے اور اپنی بیوی کی زندگی گزار لے تو تم اپنی بیٹی کی نکاح کر دیا کرو۔ اگر آج حضور مالدار بیٹے سے شادی کر دیتے تو دنیا والے کہتے حضور کی سنت ہے مالدار لڑکا تلاش کرنا، حضور کی سنت ہے، لیکن حضور نے وہ پیغام دیا، حضور نے وہ پیغام دیا جس کے اوپر دنیا چاہے تو آسانی کے ساتھ عمل کر سکتی ہے، آسانی کے ساتھ عمل کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں حضور نے 11 شادی کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ حضور کی سیرت پڑھے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی ہے، بعض لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن سن لے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا حضور نے، اور حضور نے وہ پیغام دیا ہے دنیا والوں کو کہ اگر دنیا والے اس کے اوپر عمل کرنے لیں تو بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا، لیکن آج تاریخ گواہ ہے دنیا والے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ جس وقت حضور نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جانتے ہیں 40 سال کی ہے، 40 سال کی عمر ہے، اور حضور کی عمر 25 سال کی ہے۔ آج اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے اگر لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر لڑکی سال بھر بڑی مل جائے تو باپ کا باپ لڑکی تو ہمارا بیٹا سے بھی بڑے کا ہے، لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہاں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال اور میرے آقا کی عمر 25 سال، 15 سال بڑی ہے خدیجۃ الکبریٰ آقا سے، اور نکاح کا پیغام دے دی، میرے آقا نے نکاح کیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا اور بتا دیا دنیا والوں کو سنو اگر لڑکی 40 سال کی بھی ہو، اگر لڑکا 25 سال کا بھی ہے تو نکاح کر لے گا، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اور میرے آقا جس خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ شادی شدہ بیوہ عورت تھی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے کہیں مولوی صاحب کہیں لڑکی دیکھیے تلاش کیجیے، اگر میں کہہ دوں بیوہ لڑکی سے شادی کر لیجیے، عمر میں 10 سال آپ کے بیٹے سے بڑی ہے، تو آج کب آپ یہی جواب دے گا مولانا صاحب پاگل ہو گئے ہیں، ہمارا بیٹا کہاں شکوار ہے، آپ اس سے بیوہ عورت سے کیوں شادی کرا رہے ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا، کوئی تیار نہیں ہے۔ حضور سے افضل ہے آپ کے بیٹے، تمام نبی سے افضل ہمارا نبی ہے، لیکن ہمارے نبی بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بیوہ عورت سے بھی نکاح کرو گے ثواب ہی ثواب ہے۔
लेकिन कोई नहीं कर सकता है। उम्र में ज्यादा तो साल भर की उम्र देकर हटा देते हैं, अगर 15 साल 20 साल के बाद आ जाए तो बात ही खत्म कर देंगे, वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका ने ज्यादा उम्र वाली लड़की से भी निकाह करके बता दिया कि अगर लड़के से भी उम्र में ज्यादा लड़की हो तो निकाह करना जायज है और सवाब का काम है। और फिर एक मकाम पे मेरे आका ने हजरत आयशा से, जो हजरत आयशा की उम्र गालिबन 12-14 साल की थी, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि अगर दुनिया में औरत की उम्र मर्द की उम्र से कम भी है उसे भी निकाह कर लेगा, मुस्तफा के सुन्नतों पे अमल हो जाएगा। गोया मेरे आका ने, मैं अलबत्ता ये कर रहा था, जो लोग ये कहते हैं कि नबी ने 11 शादी की, आखिर क्यों किया? नबी ने जो काम कर दिया दुनिया वाले चाह कर भी नहीं कर सकते, दुनिया वाले उनके सुन्नतों पे अमल भी नहीं कर सकते। मेरे आका की जिंदगी पढ़िए, मेरे आका ने जो शादी किया ना, फकत एक खातून है जो कुमारी है, जिसका नाम हजरत आयशा सिद्दीका है। बाकी जितनी औरतें हैं कि कोई तलाकशुदा है, कोई शादीशुदा है, कोई बेवा है, जितनी औरतें सारी गवाह है। आज आपको कहा जाए कि आप अपने बेटे की शादी बेवा से कीजिए तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे आका ने 10-10 शादियां किया है। 10-10 शादी करने के बाद ऐसी औरतें से जो तलाकशुदा औरत है, बेवा औरत है, जिसका कोई सहारा नहीं, मेरे आका ने सहारा बन के दिखाया है। आप भी अगर नबी के मानने वाले हैं, नबी के नाम पे कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, एक सुन्नत पे अमल कीजिए और एक बेवा से अपने बेटे का निकाह करके दिखाइए, भी मैं मान जाऊंगा कि आप आका से मोहब्बत करने वाले। कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ नाम कि हम मुसलमान है कर लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर जुबानें पढ़ भी ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, अगर जुबानें पढ़ भी ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को भी मुसलमान बनाइए, निगाह को भी मुसलमान बनाइए। मेरे आका की सीरत को समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि मेरे आका कितने पावरफुल थे। इसलिए मुसलमानों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटी की शादी के बाद आपके बेटे या बेटी की जिंदगी में खुशहाली आए, तो आप दुनिया के दिखावे के मुताबिक शादी न करें, मेरे आका के सुन्नतों के मुताबिक शादी करें। यकीनन आपके बेटे या बेटी की शादियां में 4-4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे कहने से ज्यादा उसके ऊपर हमें और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक को नसीब फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार मुझसे बोलने में या सामईन के सुनने में किसी किस्म की गलतियां खामियां हो गई हो, अल्लाह उसे माफ फरमाए। मैं सिद्के दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़िए हमारे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।